अर्धा मिनिटला गेला तर ते पोस्टिंग सुरू होतंय. You are live. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री शिवाभ्याम नमः. प्रप्रथम काशी क्षेत्र के आदि दंपति काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए और क्षेत्र के आदि जगत गुरु श्री 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 1008 जगत गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी को भी दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए वर्तमान जगत गुरु श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को भी शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए और इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम में उपस्थिति श्रीशैल से जय गणेश कुमार शास्त्री जी को भी मनःपूर्वक नमस्कार करते हुए और इस फेसबुक के माध्यम से जो भी वीक्षित कर रहे हैं उन सभी भक्तों को इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम में स्वागतम सुस्वागतम. फेसबुक ಮಾಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. సమస్త ఫేస్బుక్ మాధ్యాంతరంగా చూసేటటువంటి సమస్త సద్భక్తులందరికీ కూడా ఈ ప్రశ్నోత్తరీయ కార్యక్రమంలో మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం सुस्वागतम. तो पिछले जो हफ्ता से अपने पास आया हुआ जो कुंडलियों को लेकर के उनके जो समस्या को निवारण करने के लिए इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम अभी प्रारंभ होने जा रहा है. जो भी पिछले हफ्ते में भेजा हुआ उन सभी समस्याओं को प्रश्नों को आज अपने सामने गणेश शास्त्री जी तेलुगु हो तो तेलुगु में बोलेंगे, जो भी बोलेंगे गणेश शास्त्री जी मैं उसको संक्षिप्त माध्यम से उसको हिंदी में अनुवाद करता हूं और कन्नड़ से भी कई प्रश्न आए हुए हैं और तेलुगु लोगों का इस प्रकार से हिंदी लोगों का भी इस प्रकार से सभी का प्रश्न अपने पास आए हुए हैं. जिस किसी को भी कुछ भी प्रश्न पूछना है, कोई समस्या से आप जुड़े हैं तो उन समस्याओं को सारे समस्याओं को निवारण करने के लिए एक मार्गदर्शन करने के लिए अपने हैदराबाद वास्तव्य जय गणेश कुमार शास्त्री जी अपने पास मौजूद हैं. इसलिए शीघ्र से शीघ्र जिस किसी को भी कुछ पूछना है तो उनको व्हाट्सएप पर भेज करके इन समस्याओं को निवारण कर सकते हैं, अर्थात विमुक्त हो सकते हैं. हम यही इन्हीं बातों को कहते हुए अभी गणेश शास्त्री जी अपने तेलुगु भाषा में वो बात करेंगे. उसके बाद हिंदी में हम अनुवाद करता हूं तो अभी शास्त्री जी बात करेंगे. अन्नगारू మాట్లాడండి. ఈ యొక్క జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తర మాల కార్యక్రమానికి స్వాగతము. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ జగద్గురు పాదపద్మములకు అనంతానంత శిరసాష్టాంగ నమస్కారములు. మరియు ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి వీక్షకులందరికీ కూడా నా నమస్కారములు. చెప్పండి ఈరోజు యొక్క జాతకాలు ఏవొచ్చాయి? మొదటి జాతకం ఏది? अपने पास महंत हिरेमठ करके कोप्पड़ से उन्होंने पूछा है कि मेरे उद्योग प्राप्ति कैसा होगा, उद्योग प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से उन्होंने पूछा है. डेट ऑफ बर्थ है 1/7
1993 और समय है सुबह 6:35 को 6:35 ప్రదేశం दूसरा చెప్పండి. प्लेस जो है कोप्पड़ा కొప్పల. कर्नाटक से हुआ है। ఓకే ఓకే 1/7/1993 మార్నింగ్ 6:35 కొప్పల. बरोबर। ఓకే. వీళ్ళు తెలుగు వాళ్ళ కన్నడనా ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿನ? ಕನ್ನಡ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತಕದವರು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಈ ಜಾತಕರು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ 7ನೇ ಪಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆದ ಬುಧ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಆ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡೋದು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ మరియు ಸುಖ, ಧೈರ್ಯ, ಸದ್ಗುಣ, ಸತ್ಯಸಂಧತ, ದೈವ ಚಿಂತನ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜಾವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మరియు ಮತ್ತೆ ಭೂಸ್ಥಿತಿ, ವಾಹನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಬುಧ ಮಹರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂತರ್ದಶ ನಡೀತೈತೆ. ಕೋನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ನವಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶನಿ ವಕ್ರಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾರಕ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಗುರುವು ಅಥವಾ ಕುಜು ಗ್ರಹಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲೋ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬುಧ ಮಹರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂತರ್ದಶ ನಡೀತೈತೆ. ಶನಿ ನವಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अभी कर्नाटक से महांतेश हिरेमठ करके उन्होंने पूछा है कि मेरे को उद्योग प्राप्त होगा कि नहीं होगा और वो मिल सकता है नहीं मिल सकता करके उन्होंने पूछा है कर्नाटक से। तो उनके जन्म कुंडली को विचार करते हुए शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के गुरुवार के दिन अनुराधा नक्षत्र द्वितीय पाद में और शुभ योग में बालव कर्ण में वृश्चिक राशि, इनका राशि है वृश्चिक राशि, और मिथुन लग्न में इनका जन्म हुआ है। और मिथुनाधिपति मिथुनेश जो है बुध ग्रह है। अभी इनको वर्तमान में बुध महर्दशा में शनि अंतर्दशा चल रहा है। इनका प्रश्न है उद्योग प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उनके जन्म कुंडली को विचार करते हुए धन स्थान में लग्नेश जो है धन स्थान में होने के कारण और दशमेश जो है चतुर्थ स्थान में होने के कारण वो देखने के कारण वो जो भावाधिपति है बहुत ही देखने के कारण शुभ फलदायक वो पा सकते हैं।
अर्थात दशमेश चतुर्थ स्थान पर होने के कारण, वो वीक्षण करने के कारण सभी प्रकार के वो फलों को, अच्छा फलों को वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दशमाधिपति चतुर्थ स्थान में होने के कारण उनको ज्ञान हो और सुख जो हो, धैर्य प्राप्त हो और सद्गुण संपन्न हो और दैव पूजा पर, दैव पर उनको बहुत सारा विश्वास हो और मंत्रों पर प्रीति हो और वैज्ञानिक विषय में, और ये प्रजापति भी हो सकते हैं और इनको सभी प्रकार के भू स्थिति हो, वाहन योग हो, इनको सभी प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं करके इन्होंने बोल रहे हैं। इसके बाद बुध महर्दशा में शनि अंतर्दशा होने के कारण, नव होने के कारण और उनके कुंडली में नवम स्थान में वक्र स्थिति होने के कारण इनको उनके जो उद्योग के जो विषय में थोड़ा आलस्य भी हो सकता है और उद्योग में थोड़ा प्रवृत्ति भी हो सकता है, इसीलिए और उद्योग में समस्या भी उत्कंठ हो सकता है। इसीलिए इनको कुज ग्रह, मंगल ग्रह शनि ग्रह के ऊपर देखने के कारण इनको उद्योग में उनके सहपाठियों के साथ समस्या उत्पन्न होना और समस्याओं को निवारण करने के लिए योग्य नहीं होना, इस प्रकार से हो सकते हैं। इसीलिए ये जो कुंडली महांत हिरेमठ का कुंडली के अनुसार इनको वर्तमान में गुरु ग्रह का, कुज ग्रह का शांति करने पर इनको सभी प्रकार के अच्छा होगा। और हर शनिवार को नवग्रह के जो मंदिर है वहां जाकर के दीपाराधन करना, प्रदक्षिणा करना, इस प्रकार से उनको करने पर, और मंगलवार को हनुमान चालीसा पठन करने पर ये सभी प्रकार के फलों को, अच्छा फलों को वो पा सकते हैं और उद्योग में कोई समस्या नहीं होगा। उनके साथियों के साथ वो खुश रहते हुए मिलजुल के वो उद्योग को करेंगे, ऐसे अभी गणेश शास्त्री जी ने बताया है। और इसी श्रृंखला में अभी द्वितीय कुंडली के बारे में चर्चा होगा। अब द्वितीय कुंडली जो है महाराष्ट्र से आया हुआ है, लक्ष्मीकांत करके, और उनका कहना है संतान विषय पर उन्होंने विचार किया है। సంతానం గురించి అడగడం జరిగింది। పేరు చెప్పండి, ఏం పేరు? లక్ష్మీకాంత్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 21/7/1985. 21/7/1985. టైం 3:34 AM. ఓకే, 3:34 AM. స్థలం మహారాష్ట్ర, బీడ్. మహారాష్ట్ర, బీడ్. ఉస్మానాబాద్. ఓకే, ఈ జాతకులు శుక్ల చవితి నాడు జన్మించారు. ఆదివారం రోజున మఘా నక్షత్రం 4వ పాదంలోన వ్యతిపాత యోగంలో వనజీకరణంలో జన్మించారు. వీళ్ళ యొక్క జన్మరాశి సింహరాశి. వీళ్ళ యొక్క లగ్నము మిథున లగ్నం. లగ్నాధిపతి కూడా బుధుడు. ప్రస్తుతం ఈ జాతకులకు దశ చంద్రమహర్ దశ, దాంట్లో శుక్ర అంతర్దశ నడుస్తున్నది. ఈ యొక్క జాతకులు సంతానం గురించి అడిగారు కదా. గోచారం ప్రకారం ఈ సింహరాశి వారికి సంపూర్ణ గ్రహబలం ఉన్నది. సంతాన విషయంలో పంచమాధిపతి వ్యయస్థానంలో అనగా 12వ స్థానంలో స్థితి పొంది ఉండడం వలన, మరియు వక్రస్థితి ఉండి నీచ గ్రహంచే అయిన గురువు, నీచ పొందిన గురువుచే చూడబడుచుండడం వల్ల ఈ యొక్క జాతకునికి పిండం నిలవడం లేదు, అంటే అండవృద్ధి కావడం లేదు. ఇంకొకటి, ఈ పంచమ స్థానంలో
వక్ర శని మరియు కేతువులు స్థితి పొందడం వల్ల ఆ పంచమ స్థానాన్ని చతుర్థ దృష్టితోటి అంగారకుడు చూడడం వలన గర్భస్రావాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వివాహమైన తర్వాతనే సంతానం, వివాహమైన కొద్ది కాలంలోనే వాళ్ళు సంతానం ఇప్పుడే ఎందుకు వద్దనుకోవడం కూడా ఒక కారణం జరిగి ఉండవచ్చు. సంతాన విషయంలో ఒకరి జాతకం ద్వారా సంతాన విషయం చెప్పడం శ్రేయస్కరం కాదు. కాబట్టి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు జాతకాల్లోన చూడవలసి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఒకరు అడిగారు కాబట్టి ఈ జాతకం ప్రకారం చెప్తున్నాం. చంద్రమహర్దశలో శుక్రాంతరదశ నడుస్తున్నది ప్రజెంట్ గా. వీరు సంపూర్ణ నవగ్రహారాధన మరియు ధాన్యపూర్వక అష్టోత్తర పూజ మరియు సంతాన పాశుపత అభిషేకము హోమము చేయడం వల్ల సంతానం కలిగే అవకాశం కలదు. शुभम। बहुत ही धन्यवाद। अभी गणेश शास्त्री जी ने महाराष्ट्र से जो लक्ष्मीकांत करके इनके जो प्रश्नों को बहुत ही विस्तार रूप से उन्होंने अभी बताया है। महाराष्ट्र से है लक्ष्मीकांत करके, इनका प्रश्न है कि संतान प्राप्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता, इनका समस्या था जो उन्होंने अपने पास व्यक्त किया हुआ है। और गोचार, अभी जो वर्तमान में गोचार के अनुसार सिंह राशि लोगों के लिए संपूर्ण ग्रह बल है। संतान विषय में अभी पंचमेश 12वां स्थान पर स्थिति वहां पे होने के कारण और वक्र नीच जो गुरु ग्रह जो है नीच दृष्टि के कारण देखने के वजह से उनका संतान में समस्या उत्कंठ हुआ है और वहां पे पिंड जो है वहां पे नहीं रुक रहा है, पिंड वृद्धि भी नहीं हो रहा है करके गणेश शास्त्री जी बोल रहे हैं। और पंचम स्थान में वक्र शनि और केतु स्थिति युक्त होने के कारण वो जो पंचम स्थानाधिपति इनके कुंडली में पंचम स्थानाधिपति जो है पंचम स्थान पंचमेश अंगार ग्रह अर्थात मंगल ग्रह देखने की वजह से गर्भस्राव भी होने का अवकाश है, अर्थात सिजरिंग होना इस प्रकार से। इसीलिए विवाह होने के बाद भी ऐसा भी उत्कंठ हुआ है कि अभी क्यों हमें संतान होना चाहिए, अभी न को, इस प्रकार से विचारों को वहां पे दोनों के सामने विचार भी हुआ है करके गणेश शास्त्री जी बोला है। इसीलिए इस संतान विषय में देखा जाए तो एक ही देख करके हम लोग बोलना ये सामंजस्य नहीं होगा। इसीलिए गणेश शास्त्री जी बोल रहे हैं पति पत्नी दोनों का भी कुंडली देखना होगा, देख करके वो संपूर्ण फलों को वो हम बता सकेंगे, ऐसा गणेश शास्त्री जी बोल रहे हैं। और इनको इनके कुंडली के अनुसार अभी चंद्र महारदशा में शुक्र अंतरदशा अभी चालू है। इसीलिए इनको परिहार के लिए संपूर्ण नवग्रह धान्य पूर्वक आराधना और अष्टोत्तर पूजा करना चाहिए और संतान पाशुपत अभिषेक भी इनको कर लेना है और इनको होम करना अर्थात नवग्रह होम करना, इस प्रकार से करने पर इनको शीघ्र संतान प्राप्ति होगा करके और बोल रहे हैं। और इसके लिए जो अच्छा अवकाश उनको वो प्राप्त भी कर सकते हैं, अर्थात पुत्र संतान जो है अच्छा संतान होगा, पुत्र हो पुत्री हो, जो आप मनपूर्वक आप जो इच्छा करते हैं
उसी प्रकार से ही होगा करके बताते हुए अभी तीसरा कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी हैदराबाद से शिव प्रकाश स्वामी करके उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरा जो भविष्य कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, फ्यूचर, इनके बारे में उन्होंने पूछा है। अभी उनका जन्म कुंडली के बारे में चर्चा होगा। వీరు వారి యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందని అడగడం జరిగింది హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు। వాళ్ళ పేరు చెప్పండి। మఠం శివప్రకాష్ స్వామి। డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 11వ నెల 12వ తారీఖు 11వ తారీఖు 12వ నెల 1989। డిసెంబర్ 11వ తారీఖు 1989। సమయం చెప్పండి, జన్మ సమయం। తెల్లవారుజామున 2:55 నిమిషములకు హైదరాబాద్ లో వీళ్ళది జననం అవ్వడం జరిగింది। జననం హైదరాబాద్। హైదరాబాద్। ఈ శివప్రకాష్ స్వామి గారు శుక్ల త్రయోదశి నాడు జన్మించారు, సోమవారం రోజున। కృత్తికా నక్షత్రము 2వ పాదంలో అనగా వృషభ రాశిలో జన్మించారు। శివ యోగంలో తైతుల కరణంలో జన్మించారు। మరియు వీళ్ళ లగ్నము తులా లగ్నము, లగ్నాధిపతి శుక్రుడు। వీళ్ళ సమస్య ఏంటి? వీరి సమస్య నా భవిష్యత్తు ఎలా ఉండును అనేటటువంటిది వీరు అడగడం జరిగింది। వీళ్ళ లగ్నాధిపతి మిత్రక్షేత్రమైన చతుర్థ స్థానంలో రాహుతో కలిసి ఉండడం వల్ల ఈ జాతకులు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటారు, అలాగే గడుపుతారు కూడా। మరియు ఆల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా, ఆల్ కంఫర్ట్స్ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటారు। నిత్య జీవితంలోన ఆల్ కంఫర్ట్స్ ఉండాలని చెప్పి వీళ్ళు కోరుకుంటారు। ఈ జాతకులకు ధన లాభాధిపతులు కలిసి ధనస్థానంలో మంచి ధనయోగాన్ని ఇచ్చాడు। ఈ జాతకులకు ధనయోగాలు ఉన్నాయి। మరియు ఈ జాతకులకు వృత్తి మరియు వ్యాపారాలు రెండు చేసే అవకాశాలు కలిగి ఉన్నారు। ఎలా అంటే దశమ స్థానాధిపతి చంద్రుడు అష్టమ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జాతకులకు ఉద్యోగము, వ్యాపారం, వృత్తి వ్యాపారం ఈ రెండు చేసే అవకాశాలు కలిగి ఉన్నారు। జాతకులకు చిన్నతనంలోనే ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు। ఆరోగ్యం గురించి చిన్న వయసులో అంటే 8 సంవత్సరాల లోపు ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా బాధపడి ఉంటారు। మరియు శని బుధుల కలయిక ఏదైతే ఉందో అది వ్యాపారాన్ని సూచిస్తుంది। అలాగే శనికి ద్వితీయ స్థానంలో రాహు ఉండడం వల్ల తనంతకు తానే జీవితంలో కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది। అలాగే ఆ కష్టాలని ఎదుర్కొని అదైన తర్వాత మెల్లగా అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతారు। అంటే మొత్తానికి ఫ్యూచర్ బాగుంది। बहुत ही धन्यवाद। अभी हैदराबाद से मठम शिव प्रकाश करके इन्होंने पूछा है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, और इनका जन्म जो है शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन सोमवार और कृत्तिका नक्षत्र द्वितीय पाद में अर्थात दूसरे पाद पर, और योग जो है इनका शिव योग है, और करण जो है तैतुल करण है, और इनका जो राशि है वृषभ राशि है, और इनका जो लग्न है तुला लग्न है, और लग्नाधिपति जो है शुक्र है। अभी इनको वर्तमान में राहु दशा में बुध अंतर दशा अभी इनको वर्तमान में चल रहा है। इनके जन्म कुंडली के अनुसार का जो भविष्य है, लग्नाधिपति मित्र क्षेत्र में चतुर्थ स्थान में राहु के साथ युक्त होने के कारण इनके जो भविष्य में अर्थात इनके जो कुंडली में
कहता है कि इनको विलास पूर्वक अर्थात आनंदमय जीवितों को वो जीना चाहते हैं, वो रहता भी ऐसा ही है। और इनके जो कुंडली के अनुसार धना लाभाधिपति जोड़ करके होने के कारण इनको धन प्राप्ति, धन योग भी इनको है। और इनके कुंडली में वृत्ति व्यापार दोनों का भी अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। और इनके कुंडली में ये छोटे बचपन से ही इनको आरोग्य से थोड़ा समस्या उत्पन्न होना और अनारोग्य से रहना, अर्थात 8वां उम्र से ही इनको अनारोग्य से रहना, इस प्रकार से इनको समस्या उत्कंठ होना पड़ा। और इनके कुंडली में शनि बुध युक्त होने के कारण व्यापार सूचना इनको योग प्राप्ति है करके भी बोल सकते हैं। अर्थात शनि से दूसरे स्थान पर राहु होने के कारण, अर्थात स्वप्रयत्न से ही उनके जीवन में कष्टों को उठाना पड़ा है। इसके बाद इनको प्रगति होते होते और धीरे धीरे इनके भविष्य जो है अभिवृद्धि होते जाएगा करके अभी गणेश शास्त्री जी ने बहुत ही विस्तार रूप से इन्होंने बताया है। बहुत ही धन्यवाद। अभी इसी श्रृंखला में अभी चौथा कुंडली के बारे में चर्चा होने वाला है। अर्थात कर्नाटक से माहिती करके उन्होंने पूछा है कि मेरा विद्या और आरोग्य कैसा होगा। पेरेंट पेरू माहिती डेट ऑफ बर्थ 1వ తారీఖు 1వ నెల 2003 1వ తారీఖు 1వ నెల 2003 టైం ఉదయం 11 రాత్రి 11:55 నిమిషములకు రాత్రి 11:55 55 నిమిషములకు 11:55 కర్ణాటక దావణగిరి కర్ణాటక దావణగిరి వీరి ప్రశ్న విద్య మరియు ఆరోగ్యం ఎలా ఉండును। ಈ ಜಾತಕರು ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಾರ ಬುಧವಾರ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ 1ನೇ ಪಾದ, ಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಶಕುನಿ ಕರ್ಣ, ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬುಧ। ಪ್ರಸ್ತುತ ದಶ ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂತರ್ದಶ ನಡೀತೈತೆ। ಇವರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆದ ಲಗ್ನೇಶು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತಕರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ। ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಟಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ದಶವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಇರುವವು। ಈ ಜಾತಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ। ಈ ಜಾತಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಮನಸ್ಸುನೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು। ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತದೆ। ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಅಭಿ
कर्नाटक दावणगेरे से प्रश्न आया हुआ है, विद्या और आरोग्य कैसा होगा। और इनके कुंडली में, कुंडली के अनुसार इनका जो जन्म है बहुल चतुर्दशी बुधवार को मूला नक्षत्र में अर्थात प्रथम पाद में योग जो है इनका वृद्धि योग में, करण जो है शकुनी करण, और इनका जो राशि है धनस्सु राशि में, और इनका जो कुंडली का जो लग्न है कन्या लग्न है, और लग्नाधिपति जो है अर्थात लग्नेश बुध है। अभी इनको वर्तमान में शुक्र महर्दशा में, शनि अंतरदशा अभी इनको चालू है। इनके कुंडली में लग्नाधिपति पंचम स्थान में होने के कारण आरोग्य जो है अच्छा रहेगा। आरोग्य प्राप्त जो है इनको ज्यादातर समस्याओं को उठाना नहीं पड़ेगा, अर्थात आरोग्य से ये संपूर्ण आरोग्य से रहेंगे। और इनके कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह है वक्र होने के कारण इनको प्रतिकूल फलों को, प्रतिकूल समस्याओं को इनको सामने उठाना पड़ रहा है। और छोटे बचपन में इनको विद्या में आतंक आना, विघ्न होना, इस प्रकार से अभी जो इनको वर्तमान में भी इनको विद्या में थोड़ा समस्या आना, नहीं तो विद्या अभ्यास करते वक्त इनको बहुत धीरे धीरे इनको वो मार्ग पकड़ना, इस प्रकार से इनको समस्या होगा। अभी विद्या अभिवृद्धि के लिए इनको सुब्रमण्य स्वामी का आराधना करना, पूजा करना और अभिषेक करना, इस प्रकार से करने पर इनको विद्या में सभी प्रकार के जितने भी विघ्न हो उन सारे विघ्नों को नाश हो करके, अर्थात नाश करके आपको सुब्रमण्येश्वर स्वामी जो है उन्नत विद्या प्राप्त भी करेंगे। और ये जो जातक अर्थात इन कुंडली लोगों को मनस्थिति जो है सदा स्थिर रहना है। स्थिर रहने पर जो है सभी प्रकार के इनको अच्छा फल मिल सकता है। और सभी जगह पे जितना हो सके उतना अपने मन को एकाग्र और स्थिर रहना है करके अपने गणेश शास्त्री जी बहुत ही सुंदर रूप से बताया है। बहुत ही धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अभी हम लोग 5वां कुंडली चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कर्नाटका बादामी जिला से शिवमूर्ति करके इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरे जॉब प्रमोशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ శివమూర్తి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 14 10 10 1969 October 14th 1969 time 9:13 AM 9:13 AM ఓకే వీరి జననము బాదామి కర్ణాటక బాదామి వీరి ప్రశ్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వస్తుందా లేదా? ఓకే బాదామి కర్ణాటక ఓకే ಈ ಜಾತಕರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ 4ನೇ ಪಾದ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ, ಗರಜಿ ಕರಣ, ರಾಶಿ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಲಗ್ನ ಬಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ದಶಾಕಾಲ ಶುಕ್ರ ಮಹರ್ದಶ ನಡೀತೈತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ದಶಾನಾಥನಾದ ಅಂಗಾರಕ ದಶ
ಜುಲೈ 17, 2021 ವರ್ಗ ಇದಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯಾದ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತುವು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವು, ಸಂತಾನವು, ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನವು, ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಹಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಂಚೆವೇ ಬಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವುದು. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯवादಗಳು. कर्नाटक से बदामी जिला के जो शिवमूर्ति करके इनका प्रश्न है कि उद्योग में प्रमोशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है. इनका जो जन्म है शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मंगलवार के वासर पर और विशाखा नक्षत्र के 14 चरण और आयुष्मान योग में गरज कर्ण में और वृश्चिक राशि में और लग्न जो है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न लग्नाधिपति कुज है. इस प्रकार से इनका जन्म हुआ है. अभी इनको वर्तमान में शुक्र महर्दशा में कुज अंतरदशा चल रहा है. इनको 17/7/2021 तक इनको रहेगा और इनके जॉब के प्रमोशन के बारे में कुंडली में विचार करने पर अर्थात लग्न से लेकर के दशम स्थान में केतु स्थिति होने के कारण उद्योग में बहुत सारे अर्थात मार्गों को दूसरे मार्गों पर ये जाने के लिए प्रयास करना और उद्योग में असंतृप्ति से रहना इनको होना पड़ रहा है. अभी दशमाधिपति लाभ स्थान में होने के कारण इनके जो दोस्तों के साथ अच्छा स्नेह से रहना और इनको अच्छा लोगों से स्नेह संभालना और संतान भी हो और तंत्र शास्त्र में हो और इस प्रकार से सभी शास्त्रों में इनका परिज्ञान हो और आर्थिक में अभिवृद्धि हो. इस प्रकार से प्रभुत्व से सहकार सहयोग में रहना, इस प्रकार के सभी फलों को वो प्राप्त कर सकते हैं. इसीलिए इनको प्रमोशन के बारे में इन्होंने व्यक्त किया है कि कैसा होगा. तो अभी इनसे पहले भी इनको प्रमोशन भी अभी तक मिल चुका होगा. यदि नहीं मिला तो भी उनको नवंबर तक इनको मिल जाएगा. तो इनको शीघ्र से इनके दशम स्थानाधिपति लाभ स्थान में होने के कारण इनको नवग्रह अर्थात इनको नवंबर में इनको प्रमोशन वो पा सकते हैं करके अपने गणेश शास्त्री जी बहुत ही सुंदर रूप से बताया है. बहुत ही धन्यवाद. इसी श्रृंखला में हम लोग जो छठवा कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. उस्मानाबाद से अपने पास आया हुआ है. इनका प्रश्न है कि व्यापार वृद्धि होगा कि नहीं होगा. इनका जो जन्म है 25/8/1986 25/8/1986 टाइम शाम को 7 अर्थात 7:45 PM
7:45 PM. ఓకే, ఉస్మానాబాద్ మహారాష్ట్ర. మళ్ళీ చెప్పండి. उस्मानाबाद ఉస్మానాబాద్. इनका जन्म हुआ है. ఓకే, इनका ఈ प्रश्न है జాతకులు చెప్పండి ఏని గురించి ये అడుగుతున్నారు? प्रश्न జాతకం, व्यापारम. వ్యాపారం గురించి. ఈ జాతకులు బహుళపక్ష షష్ఠి తిథిన జన్మించారు. ఈ జాతకులు సోమవారం రోజున భరణి నక్షత్రము 2వ పాదంలో జన్మించారు. ధ్రువ యోగంలో, వనజీకరణంలో మరియు మేషరాశిలో జననం పొందేవారు. వీరి లగ్నము కుంభ లగ్నము, లగ్నాధిపతి శని. ప్రస్తుత వీళ్ళకి దశ అంతర్దశలో రాహు మహర్దశలో రాహు అంతర్దశ ప్రారంభమైంది. ఈ యొక్క రాహు మహర్దశలో రాహు అంతర్దశ 2023 2023 డిసెంబర్ 11 వరకు కూడా రాహు అంతర్దశ నడుస్తున్నది. లగ్నాధిపతి అయిన శని దశమ స్థానమందు ఉన్నందున ఉన్నత వృత్తి కలుగుతుంది. మరియు దశమాధిపతి లాభస్థానంలో ఉన్నందున ఉన్నత వర్గీయుల స్నేహం, అంటే ఉన్నతమైన వ్యక్తులతోటి స్నేహ సంబంధాలు ఉంటాయి. మరియు సంతానం కూడా మంచిగా ఉంటుంది. తంత్ర శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. మరియు ఆర్థిక వృద్ధి, ప్రభుత్వ సాయం కూడా కలిగి ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఈ 2023 2023 డిసెంబర్ 11 వరకు రాహు మహర్దశలో రాహు అంతర్దశన అనుకూలంగా లేదు. ధనానికి, వ్యాపారానికి, ఉద్యోగానికి మంచిగా ఉన్నప్పటికీ మారక స్థానంలో రాహుగ్రహం పాపగ్రహం ఉన్నందున దుర్గాదేవి జపం చేయడము మరియు హోమం చేసుకోవడం వల్ల శాంతి కలుగుతుంది. మరియు ఈ జాతకులకు రాజకీయ వ్యవహారం కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మరియు ఈ జాతకులకు వ్యాపార అభివృద్ధికి కనక పుష్యరాగం టోపాజ్ పుష్యరాగం స్టోన్ ధరించడం వల్ల వ్యాపారంలో అభివృద్ధిని కొనసాగించగలరు. धन्यवाद. महाराष्ट्र से, उस्मानाबाद से अभी इनका कुंडली के बारे में चर्चा हुआ है. ये कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन सोमवार और भरणी नक्षत्र में दूसरा चरण में, ध्रुवपाद में, वणिज कर्ण में और मेष लग्न में, कुंभ लग्न में, मेष राशि में इनका जन्म हुआ है. और कुंभ लग्नाधिपति जो है शनि महाराज है. अभी इनको वर्तमान में राहु महर्दशा में राहु अंतरदशा चल रहा है. अर्थात 11 तारीख 12वां महीना 2023 तक इनका राहु महर्दशा में राहु अंतरदशा अभी चल रहा है. इनका प्रश्न था व्यापार के लिए. अर्थात लग्नाधिपति शनि, लग्नेश जो शनि परमात्मा दशम स्थान में होने के कारण उन्नत वृत्ति इनको प्राप्त हो सकता है. और दशमेश लाभ स्थान में होने के कारण इनको उन्नत उत्कृष्ट वर्ग में इनको स्नेह मिलना, संतान भी अच्छा संतान होना, और तंत्र शास्त्र में इनका परिज्ञान रहना, आर्थिक भी अभिवृद्धि होना, प्रभुत्व से ये सहायता भी ले सकता है. इस प्रकार से इनको वर्तमान में 11 तारीख 12वां महीना 2023 तक राहु महर्दशा में राहु अंतरदशा होने के कारण थोड़ा अनुकूलता नहीं है. इसीलिए इन कुंडलियों को, अर्थात इस कुंडली के जो यजमान को दुर्गा देवी जप करना और दुर्गा देवी का होम हवन अष्टोत्र पूजा करने पर इनको व्यापार अभिवृद्धि होगा करके बता रहे हैं. और इस कुंडली के यजमान को
राजकीय रंग में भी इनको, राजकीय में भी ये इनको जोड़ करके आएगा करके बता रहे हैं। और व्यापार अभिवृद्धि के लिए इनको टोपाज करके स्टोन है, उस स्टोन को धारणा करने पर इनको सभी प्रकार के व्यापारों में ये अभिवृद्धि पा सकते हैं करके आज के इतने कुंडलियों को चर्चा किया गया है। जो कुछ भी अभी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी सद्भक्तों को यही निवेदन है, जिस किसी को भी कुछ भी पूछना है उन समस्याओं को निवारण करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। ये काशी जंगमवाड़ी मठ के तरफ से ये जो प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम हर हफ्ता भानुवार के दिन ये शाम को 7:15 बजे प्रारंभ होगा, 7 बजे 7:30 बजे इस प्रकार से प्रारंभ होगा। आप सभी के जो समस्याओं को, जिस किसी को भी कुछ भी पूछना है, उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम और कहाँ पे इनका जन्म हुआ है वो प्लेस लिख करके गणेश शास्त्री जी को या मल्लिकार्जुन शास्त्री जी को वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपके प्रश्नों को, आपके समस्याओं को हर भानुवार हम लोग फेसबुक के माध्यम से वो प्रत्युत्तर करेंगे। इन्हीं वचनों को कहते हुए समस्त ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಧ್ಯಂತರದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 7:15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, సమస్త ఫేస్బుక్ మాధ్యాంతరంగా చూసేటటువంటి సద్భక్తులందరికీ కూడా చెప్పేది, మీలో ఉండేటటువంటి ఎటువంటి సమస్యలైనా ఉండవచ్చు, వ్యాపారం కానీ, ఉద్యోగం కానీ, సంతానం కానీ, ఇటువంటి ఎటువంటి సమస్యలైనప్పటికీ కూడా వీటన్నిటికీ ఒక సన్మార్గాన్ని చూయించడానికి, వాటి యొక్క సమస్యలన్నిటినీ కూడా పరిష్కారం చేసేందుకు కాశీపీఠం తరపు నుంచి గణేష్ శాస్త్రిజీ గారు మనకు ఉపలబ్ధమై ఉన్నారు. అందుకు మీ యొక్క సమస్యలన్నిటినీ కూడా ఏముంటే అది, ఆ సమస్యను ఎవరు అడగాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సమయము, తర్వాత ఎక్కడ జననమైందో ఆ యొక్క స్థలము అన్నిటినీ కూడా గణేష్ శాస్త్రిజీ గారికి మరియు అథవా మల్లికార్జున శాస్త్రి గారికి మీరు పంపవచ్చు. మీ యొక్క సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారము ప్రతి ఆదివారము సాయంత్రము 7 గంటలకే అథవా 7:30కి కాశీ జంగమవాడి మఠంలో రావడం జరుగుతుంది అని చెప్తూ, इसी प्रकार से देश और विदेश में रहने वाले सभी सद्भक्तों को कहते हुए आज के इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम में जितने भी सद्भक्तों ने भाग लिया है उन सभी सद्भक्तों को काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा समेत विश्व जगतगुरु विश्वाराध्य महास्वामी जी के समस्त आशीर्वाद से समस्त सद्भक्तों को सभी प्रकार के मनोकामना हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को संपूर्ण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अभी गणेश शास्त्री जी अपनी तेलुगु भाषा में 2 बातों को कहना चाहेंगे. अन्नगारू, ఫేస్బుక్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా మీ సమస్యలకు పరిష్కారాలు చెప్పబడుతున్నాయి. మీరు వాట్సాప్ నంబర్కి మీ పేరు, మీరు జన్మించిన తేదీ, సమయము మరియు ప్రదేశం మాకు పంపండి. మీ సమస్యలకు మేము పరిష్కారం చెప్తాము. ఈ యొక్క కాశీపీఠం నుంచి వచ్చిన అవకాశం అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. జై గురుదేవ. ఓం నమ శివాయ.
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమః శివాయ.